पिछले क्लास में हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। कंडीशन था व्हेन पॉइंट लाइज अलोंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम डिस्कस किए थे, इसमें 3 केस होगा। अभी फर्स्ट केस की चर्चा हम लोग कर चुके कि यदि AB is an electric dipole having charge plus q and minus q, the length of center of dipole is O, length of dipole is 2l. P is a point along axis of dipole at distance r from center of dipole. The expression of electric field intensity at point P E equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p r by r square minus l square whole square. If dipole is very small, then this expression will be 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. ये एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। अब आज के क्लास में हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन पॉइंट लाइज along perpendicular bisector of dipole axis. Electric field intensity at a point due to electric dipole. अब इसमें केस 2 हो गया when point lies on perpendicular bisector of dipole axis. तो suppose AB is an electric dipole. Plus Q charge is situated at point A, minus Q charge is situated at point B. The center of dipole is O, length of dipole is 2l. So this will be L and this will be also L. Point P lies on perpendicular bisector of dipole axis at distance r from center of dipole at which electric field intensity is to be determined. To find electric field intensity at point P due to plus Q charge and due to minus Q charge, distance of point P from plus Q charge and minus Q charge are to be calculated. So from geometry, the distance AP will be under root r square plus l square. यहाँ से यहाँ तक क्या है? r है, ये l है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आपका हो गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. सिमिलरली द डिस्टेंस BP इज ऑल्सो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. अब देखो, इस प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो यहां से
ये प्लस चार्ज यहाँ के पर यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पहले ही बता चुके हैं कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी हो उस पॉइंट पर हम लोग टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और माइनस क्यू चार्ज यहाँ के टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 ये अट्रैक्ट कर लिया। अब देखो ये दोनों साइड इक्वल है। अगर इस एंगल को हम थीटा एज्यूम करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम लोगों का काम क्या है, तो आवर एम इज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, and lastly we will add E1 and E2. The electric field intensity is vector quantity, so these two intensity will be added according to law of addition of vectors. The angle between E1 and E2 will be 2 theta, because this angle is exterior angle of this triangle, and exterior angle is equal to sum of rest two interior angle. ये इसका वैश्य कोण एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, दोनों के सम के बराबर। इस E1 और E2 का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इट इज E, एंड E मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ E1. The value of E1 equal to, that means electric field intensity at point P due to plus Q charge 1/4 pi epsilon naught Q. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 1/4 pi epsilon naught Q by R square. So here in place of R, the value is under root R square plus L square. The square of this will be R square plus L square. Similarly, electric field intensity at point P due to minus Q charge, E2 equal to 1/4 pi epsilon naught Q by. Distance is also here under root R square plus L square. L square. Angle between E1 and E2 is 2 theta. Electric field intensity at point P due to electric dipole E equal to E1 plus E2. तो क्या फॉर्मूला है वेक्टोरियल सम का, अंडर रूट E1 ए स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा प्लस E2 ए स्क्वायर। अब देखो E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 ए स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर हुआ, E2 ए स्क्वायर भी इसी का स्क्वायर होगा, E1 इंटू E2 तो फिर इसी का स्क्वायर हो गया। तो इसको आप कॉमन लेकर के रूट से अगर बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से स्क्वायर कॉमन हुआ, रूट से बाहर आ गया, एक बच गया 1, यहाँ भी 1 बच गया, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, यहाँ पर 2 cos 2 थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन लिए, 1 + cos 2 थीटा, 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 + cos 2 थीटा, और 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा।
2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 cos थीटा, रूट खत्म। अब देखो फ्रॉम हियर cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। इन प्लेस ऑफ cos थीटा वी कैन राइट एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से अब हम लोग यहां पर आएंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई प्लस एल स्क्वायर इंटू 2। इन प्लेस ऑफ cos थीटा वी कैन राइट एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। Q into 2L is called electric dipole moment, which is represented by P R square plus L square. The power of this is 1 and power of this is 1/2. Then R square plus L square का पावर क्या हो जाएगा 3/2. The expression will be equal to 1/4 pi epsilon naught. In place of Q into 12 we can write P by R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो अगर पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर उसके सेंटर से R डिस्टेंस पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन E इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। If dipole is very very small, then L square can be neglected. On neglecting L square equal to, so when L square is neglected then R square to the power 3/2 will be R cube. The equal to 1/4 pi epsilon naught P by R cube. तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा हो तो उस सिचुएशन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। अब इस E का डायरेक्शन तो हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि यह जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा। तो आपको याद होगा वेक्टर में समझाए थे तो tan अल्फा इक्वल टू बताए थे वेक्टर में कि यह जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो यहां पर सूत्र होगा E2 sin 2 थीटा बाई E1 plus E2 cos 2 theta. Here 2 theta is angle between E1 and E2. Since E1 equal to E2, therefore tan alpha equal to E2 sin 2 theta. If in place of E1 we write E2, E2 will be taken out common from both expression. E2 will be taken out 1 plus cos 2 theta. The tan alpha equal to sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta. Sin theta by cos theta equal to tan theta. That means alpha equal to theta. If this angle is theta, then this will be also theta. That means the direction of electric field E is parallel to dipole axis in opposite direction to the direction of electric dipole moment.
तो जब भी कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सिचुएटेड है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। और हम लोग निकाल चुके हैं कि अगर पॉइंट डाइपोल एक्सिस के अलोंग है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो अब यहां पर दो बात याद रखना है। In case of very small electric dipole, electric field intensity at a point along axis of dipole E1 equal to 1/4 pi epsilon naught 2p by rq and electric field intensity at a point on perpendicular bisector of dipole axis E2 equal to P by R। तो आप यहां पर अगर इसको मिलाते हैं तो यहां पर यह वैल्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, हाफ है। आप इसको ऐसे यहां लिख सकते हैं 2E2, यानी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होती है, डबल होती है। इसको रिवर्स कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हाफ होती है। तो पहला बात आपको याद रखना है कि अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होती है, डबल होती है। दूसरी बात, यह जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस के अलोंग, यह है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। इस दोनों के डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। मान लो क्वेश्चन पूछता है E1 and E2 are electric field intensity at a point on axis of dipole and on perpendicular bisector of dipole. Angle between E1 and E2 will be 0 degree, 90 degree, 120 degree, 180 degree। ये क्वेश्चन पूछ दिया। E1 and E2 are electric field intensity at a point on axis of dipole and on perpendicular bisector of dipole. Angle between E1 and E2 will be। तभी हमने क्या आपको समझाया कि अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और यदि पॉइंट एक्सिस के अलोंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब क्या है कि E1 और E2 का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। इसको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन मान लो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड at a point along axis of very short electric dipole. Electric field at a point along axis of very short electric dipole is 4 Newton per coulomb. If electric dipole is rotated through angle 90 degree, then what will be इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट? मान लो एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट कीजिएगा, वही पॉइंट जो अभी एक्सिस के लॉन्ग थी वह उसके कहां पर आ जाएगी? परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। और एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसके एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू का क्या होता है? हाफ होता है। यानी अगर आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, एक्सिस के लॉन्ग यहां पर पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 4 न्यूटन पर कूलम। अब इस डाइपोल को 90 डिग्री से जैसे रोटेट कीजिएगा तो यही पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कहां पर आ जाएगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू का क्या होता है? हाफ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 न्यूटन पर कूलम। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण दो कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिए। पहला केस व्हेन पॉइंट लाइज अलोंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेकेंड केस व्हेन पॉइंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस। केस थर्ड इज व्हेन पॉइंट लाइज एनीवेयर विथ रेस्पेक्ट टू डाइपोल एक्सिस। केस 3 is when point lies anywhere with respect to dipole axis। तो इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए आपको जो पीछे फार्मूला हम बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसको याद रखना पड़ेगा। हम लोग फार्मूला निकाले थे कि इफ AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2L, P is a point at distance R at angle theta from axis of dipole, then electric potential V is equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta by R square minus L square cos square theta. अब here if dipole is very small, then the term L square cos square theta is neglected. That means in case of very small dipole, potential V equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta by R square। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे इस थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन पहले बताया गया, इज इक्वल टू dV माइनस dV बाई dr। इसका भी यूज हम लोग यहां पर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू। O is center of dipole, P is point at which electric field intensity is to be determined. The distance of point P is R. The line OP makes an angle theta with direction of dipole axis. Here will be two components of electric field intensity at point P. One is due to variation in R and another is due to variation in the value of theta. The electric field intensity which is found due to variation of distance R is called radial component of electric field intensity. The ER is radial component of electric field intensity which is equal to dV by dr. Suppose point P is taken here P dash at distance dr. Distance OP dash is also R. Angle, this angle is theta. From triangle POP dash, d theta is equal to dr by r or dr equal to r d theta. So due to variation of angle theta, the electric field component is called transverse component of electric field, which is E theta equal to माइनस dV by dr के जगह पर क्या लिख सकते हैं, r d theta. ER and E theta are perpendicular to each other. Now our aim is to calculate radial component of electric field ER and transverse component of electric field E theta, and then the resultant of ER and E theta will be expression of electric field at point P due to this electric dipole. Suppose E is resultant electric field intensity at point P, which makes an angle alpha with radial component of electric field, and the direction of E makes an angle phi with the axis of electric dipole. If this angle is alpha, then this will be also alpha. तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ER इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, माइनस dV बाई dr. अब यहां पर अभी बताया कि V का एक्सप्रेशन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर. तो इन दिस एक्सप्रेशन थीटा इज केप्ट कांस्टेंट, r इज वेरिएबल, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा d बाई डी थीटा ऑफ 1/r स्क्वायर. अब 1/r स्क्वायर को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा d बाई डी आर. 1/r स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर माइनस 2. अब देखो डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला है कि इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे. तो अगर इसका यूज आप करते हैं तो n के जगह पर क्या है, -2, तो -2 बगल में आ गया, -2 -1 -3 हो जाएगा. तो ER इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा -2 r टू द पावर -3. दिस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई r3. This is the value of radial component of electric field intensity at point P. In such a way,
we will calculate the transverse component of electric field E theta. E theta equal to minus dV by r d theta, minus 1 by r. In place of E, 1 by 4 pi epsilon naught p by r square d by d theta of cos theta. Differentiation of cos theta is minus sin theta. Due to minus sign, this will become plus 1 by 4 pi epsilon naught p sin theta by r cube, r square into r cube. So now the value of ER is 1 by 4 pi epsilon naught 2p cos theta by r cube. Value of E theta equal to 1 by 4 pi epsilon naught p sin theta by r cube. Electric field intensity at point P due to electric dipole equal to under root ER square plus E theta square, because the angle between ER and E theta equal to 90 degree. The under root 1 by 4 pi epsilon naught 2p cos theta by r cube whole square, 1 by 4 pi epsilon naught p sin theta by r cube whole square. तो 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube, ये तो कॉमन होकर के बाहर आ गया, बच गया 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. हियर विल बी प्लस sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो एक्सप्रेशन E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube 3 cos square theta plus 1. This is the expression of electric field intensity at point P due to electric dipole. Now the value tan alpha equal to, ये एंगल किसके साथ, ER के साथ, तो E थीटा साइन 90 डिग्री ER प्लस E थीटा cos 90 डिग्री. द वैल्यू ऑफ cos 90 इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ साइन 91, दैट मीन्स E थीटा बाई ER. 1 by 4 pi epsilon naught p sin theta by r cube 4 pi epsilon naught 2p cos theta by r cube. सब कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 1 by 2 tan थीटा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 by 2 tan थीटा. The direction of net electric field E makes an angle tan inverse half tan theta with the direction of ER. But the direction of E makes an angle phi with the axis of dipole. So from geometry, here it is clear that phi is exterior angle of this triangle, which is equal to sum of two rest interior angle theta and alpha. So phi equal to theta plus alpha. Theta in place of alpha we can write tan inverse half tan theta. तो ये एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जब पॉइंट एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पर सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर हो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. और फॉर डायरेक्शन द एंगल विच मेक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ एक्सिस ऑफ डाइपोल phi is equal to theta plus alpha is equal to theta plus tan inverse half tan theta. तीनों केस हम लोग डिस्कस कर चुके. अब इसके बाद यहाँ से टॉपिक हम लोग चेंज करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का क्लास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में. थैंक यू.